Hello student, I am Ali with you. Today we are going to discuss about the light. The light chapter is going on, and today we learn the further parts of light chapter. In the previous class we have discussed about the light, the laws of reflection. Today we are also still in the laws of reflection. I have already mentioned that the laws of reflection indicate that this is the normal. If the light bend at any angles and then at the polished surface, then they reflected back. This is known as incident ray, and this is known as reflected ray, and this is known as normal. When the light fall, when the incident ray make an angle to the normal, that is known as incident angle of incidence, and when the reflected ray make the angle with the help of normal, that is known as angle of reflection. And we know that angle of I is always equal to angle of R. This is the important one. The laws of reflection is fulfilled for every light, whether the light fall on rough surface or smooth surface. This law is applicable for both surfaces. Today we are going to discuss about the incident ray and the normal ray and the reflected ray. Suppose that this is the mirror. The incident ray, the normal, the reflected lie at the same position. This is the O position. They lie at the same position. These are the second laws of reflection. Say that the incident, normal and reflected lie at the same position in the same plane. This is the same plane. Do you see any relation between the angle of incidence and the angle of reflection? Yes, we see that in every case the angle of I is always equal to angle of R. Are they approximately equal? Yes, they are approximately equal. If the experiment is carried out carefully, it is seen that the angle of incidence is always हमेशा equal to the angle of reflection. This is the law of reflection. इसी को तो हम लोग बोलते हैं laws of reflection. Let us perform another activity on the reflection. चलिए एक और एक्टिविटी हम लोग करते हैं रिफ्लेक्शन पे. अब देखिए यहाँ पहली जानना चाहती what will happen if I throw the light on the mirror along the normal. अगर जो पूछना चाहती है कि if we normally flow the light on the mirror, suppose that this is the mirror, और नॉर्मल मीन्स क्या है 90 डिग्री. अगर आप लाइट 90 डिग्री पे मिरर पे क्या है फॉल करेंगे तो इसी डिग्री से क्या हो जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा. मतलब यहाँ एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर इक्वल टू हो जाएगा 0. वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय पहली वांट टू नो when we throw the light at the 90 degree perpendicular to the mirror, they reflect at the same path. It means the angle of I equal to angle of R here is 0. It means 90 डिग्री पे हम लोग भेजेंगे, उसी 90 डिग्री से हमारा लाइट रिटर्न बैक हो जाएगा. वेरी गुड पहली. चलिए अब हम लोग एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं. एक्टिविटी लिखा हुआ है 6.2. इस एक्टिविटी में बताता है परफॉर्म एक्टिविटी 6.1 अगेन. This time a sheet of steel paper on a chart paper. Let us the sheet project little beyond the edge of the table. Cut the projecting portion of the sheet in the middle. Look at the reflected ray. Make sure that reflected ray extend to the projected portion of the paper. Bend that part of the projector portion on which the reflected ray. Can you still see the reflected ray? Bring the paper back to the original
position, can you see the reflected ray again? What do you interfere? The incident ray reflected and normal at the point of incidence lie on the same position. आप देखेंगे कि जो है एक पेपर लेना है, एक टर्च लेना है, फिर आप देखेंगे कि एक मिरर लेना है, उसमें देखेंगे कि हर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल लाई एट द सेम पोजिशन, बस इतना ही बोलना है। होता हम लोग को बोला है when the whole sheet of paper is spread on the table, अगर पूरे पेपर को हम लोग फैला देते हैं, it represent one plane, तो ये क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। The incident ray, the normal and the point of incidence and the reflected ray on this plane, तो at the same position भी हो गया, उसका पोजिशन भी सेम हो गया और प्लेन भी क्या हो गया। Suppose that this is the mirror, this is the incident ray, reflected ray, normal, they lie at the same position O in the same plane in the mirror M और M dash। तो यही बता रहा है, एक्टिविटी में बता रहा है कि दोनों एक सेम प्लेन में लाई करते हैं और सेम पॉइंट, सेम प्लेस पे लाई करते हैं। बोला जा रहा है कि डिफरेंट इन विच इंसिडेंट रे नॉर्मल लाई देन यू नॉट सी द रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट डज इंडिकेट, ये इंडिकेट बताता है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे लाई एट द सी इन द सेम प्लेन, दिस इज द अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहली एंड बुझो परफॉर्म द एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम with the sun and the source of light instead of torch. You too use the sun as the source of light and perform the activity outside your home. This activity can be also performed by making use of ray stick apparatus available in the kit prepared by NCERT. NCERT के द्वारा एक किट तैयार किया गया है। बुझो रिमेंबर दैट क्लास 7 में ही हैड स्टडी सम फीचर्स ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट परफॉर्म बाय प्लेन मिरर। पहली आस्क्ड हिम टू रिकॉल दिस फीचर। बुझो को याद है कि उन्होंने क्लास 7 में कुछ प्लेन मिरर जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं उनके बारे में, उसका कुछ फीचर्स को ये परफॉर्म किया था। अब ये जो उसकी बहन है उसको बोल रही है कि उस फीचर्स को आप क्या कीजिए, रिमाइंड कीजिए, रिकॉल कीजिए कि उस फीचर्स को आपने क्या क्या देखा था। हम सब जो है देखते हैं कि प्लेन मिरर के जब सामने खड़े होते हैं तो हम लोग का इमेज जो है हमेशा कैसा बनता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। फिर इमेज का जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, आप मिरर से जितने दूर खड़ा रहिएगा आपका इमेज मिरर में उतना ही क्या होता है, दूर दिखाई देता है। फिर जो है जो इमेज है वो लिटरली इन्वर्टेड, इसके मतलब जो है अगर आप राइट हैंड दिखाइएगा तो वो आपका लेफ्ट हैंड दिखाता है, मतलब इमेज को जो है इन्वर्स कर देता है। दैट इज नोन एज लेफ्ट अपीयर्स टू राइट एंड राइट अपीयर्स टू लेफ्ट, दैट इज नोन एज लेटरली इन्वर्टेड। मतलब हम लोग का इमेज जो है वह लेटरली इन्वर्टेड होता है। दीज आर द फ्यू फीचर्स ऑफ प्लेन मिरर। तो ये कुछ फीचर्स हैं प्लेन मिरर का। देखिए, व्हाट वाज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन? इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट इन द प्लेन मिरर। व्हाट इज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? यस, दे आर द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दे आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। आप मिरर से जितने दूर पे हैं उतना ही आपका इमेज मिरर से दूर बनेगा। Did the image appear at the same distance? Yes, they appear at the same distance behind the mirror as the object was in front of it. ऑब्जेक्ट मिरर के जितना ही आगे रहेगा और जो इमेज बनेगा वह मिरर के उतना ही पीछे बनेगा। Let us understand the little more about the formation of image formed by the plane mirror in the following way. ये सब कुछ दिए हुए हैं, इस प्लेन मिरर से हम लोग सब वाकिफ हैं। प्लेन मिरर से हम लोग बैठते हैं, हम लोग देखते हैं। प्लेन मिरर हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक उसका उपयोग करते हैं। ये एकदम प्रैक्टिकल है। आप अपने घर में आप अपने आप को मिरर के सामने रह के इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, जान सकते हैं। You can recall that an image formed by a plane mirror and left of the object appear on the right and the right appears on the left. This is known as lateral inversion। और यही जो है आपका देखेंगे कि जो एम्बुलेंस होता है उस पर एम्बुलेंस जो है इन्वर्टेड लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है। आगे वाले गाड़ी में एम्बुलेंस सीधा दिखाई देता है। दिस इज ड्यू टू लेटरल इन्वर्शन। अब आइए हम लोग देखते हैं रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब देखेंगे, जब व्हेन द लाइट फॉल ऑन द स्मूथ सरफेस,
जब देखिए जब लाइट एकदम स्मूथ सरफेस पे फॉल कर रहा है तो एकदम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एकदम ऐसा पैरेलल की तरह बिहेव कर रहे हैं, एकदम पैरेलली अरेंज हो जा रहे हैं। इंसिडेंट रे पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल, इस तरह के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा? जब स्मूथ आपका एकदम बिल्कुल क्या होगा, आपका जो सरफेस होगा एकदम स्मूथ होगा। जैसे मिरर हो गया, ग्लास हो गया, इस पे जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो एकदम जो है इंसिडेंट रे पैरेलल होंगे, रिफ्लेक्टेड भी एक दूसरे से एकदम क्या है, पैरेलल होंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं क्या, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए जो आपका सरफेस क्या होगा, अगर रफ होगा तब इंसिडेंट रे फॉल किया, रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस डायरेक्शन में, फिर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे कुछ और डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे पैरेलल वे में नहीं मिलेंगे, कुछ राइट डायरेक्शन में, कुछ लेफ्ट डायरेक्शन में, कुछ ईस्ट डायरेक्शन में, कुछ वेस्ट डायरेक्शन में। इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्लेक्शन जो होगा वह रफ सरफेस पे होगा, ना ही आपका स्मूथ। जैसे व्हेन ए लाइट फॉल ऑन ए टेबल, व्हेन ए लाइट फॉल ऑन अ बेड, व्हेन ए लाइट फॉल ऑन अ वॉल, इस पे जो रिफ्लेक्शन होता है दैट इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हम देखते हैं कि आप लोग समझ गए हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के कारण ही इमेज बनता है, हम लोग देख पाते हैं। जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज नहीं बन पाता है, जिससे हम लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन देखिए जब लाइट फॉल करता है टेबल पे, वह लाइट जो है हमारे आँख में आता है, तब हम लोग का जो है टेबल देख पाते हैं, ना ही टेबल का इमेज बन पाता है, क्योंकि टेबल का जो लाइट जो रिफ्लेक्शन होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, रफ सरफेस होता है। तो आज जो है रेगुलर और इरेगुलर का डिफिनेशन आपको लिखना है, उसको जो है जल्द से जल्द भेजने की कोशिश करना है, उसको चेकआउट किया जाएगा। कल हम लोग जो है रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात पढ़ेंगे।